हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग वेल. So coming to the topic, we all know, directors is a major chunk of company law, and it is divided into three parts. So the first two parts, that is the chapter number 11 and chapter number 13 of the Companies Act, we have already finished in the earlier two videos. So now in this video we will start with chapter number 12, that is meetings of the board and its powers. It comprises of section number 173 to 195. So then starting with question number 11, part 1, what is the procedure to be followed when a board meeting is adjourned for want of quorum? यानी कि बोर्ड मीटिंग अगर रुक जाती है क्योंकि quorum नहीं है तो हम क्या करेंगे? Section number 174(4) of the Companies Act 2013 provides that if a board meeting could not be held for want of quorum, then unless article provides otherwise, the meeting shall automatically stand adjourned to the same day next week at the same time and place, or if that day is national holiday, till the next succeeding day which is not a national holiday at the same time and place. तो ये एकदम काफ़ी जनरल आंसर है. ये पर्टिकुलर एज सच क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है छोटा सा, और इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना. नेशनल हॉलीडे कहाँ है, तो नेशनल हॉलीडे में वी कैन टेक 26 जैन या फिर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और महात्मा गांधी की जयंती जो है 2 अक्टूबर, वो कंसिडर की जा सकती है, और पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग हो सकती है, लेकिन बट वी विल नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज पास्ड बाय द BOD और इट्स कमेटी. तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन यानी कि सेक्शन 175 के बारे में पूछ रहा है, पूरा प्रोसीजर उसका बताना है. The Companies Act 2013 permits a decision of the BOD to be taken by means of resolution by circulation. Board approvals can be taken in one of the two ways. One by resolution passed at board meeting and the other by means of resolution passed by circulation. यानी क्या तो मीटिंग में खुद पर्सनली फिजिकली अटेंड होके हम सर्कुलेशन पास कर सकते हैं, या फिर सर्कुलेशन रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करके हम वो रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं. In terms of section 175 of the Companies Act, no resolution shall be deemed to have been duly passed by the board or by committee thereof by circulation unless following conditions have been complied with. तो ये सारी कंडीशन जो हैं वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है, RBC इन शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, वो फुलफिल होगा. First, the circulation has been circulated in draft together with the necessary papers if any. The draft resolution has been circulated to all the directors or members of the committee. The draft resolution has been sent at their addresses registered with the company in India. Such delivery has been made by hand, post or courier or through prescribed electronic means. तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, उसके अंदर आ जाएगा ईमेल और फैक्स. और ये जो कोरियर है, कोरियर वाले पॉइंट में हमें ध्यान देना है कि जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है, यानी कि 175 सेक्शन में कोरियर आता है, लेकिन जब हम बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस देते हैं, जो फिजिकल बोर्ड मीटिंग होती है उसके लिए जो हम नोटिस देते हैं, उस केस में हम कोरियर के थ्रू जो नोटिस है वो सेंड नहीं कर सकते हैं. ये एक पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिए. नेक्स्ट है, सच रेजोल्यूशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, who are entitled to vote on resolution. However, if at least 1/3 of the total number of directors of the company for the time being required that any resolution under circulation must be decided at the meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at the meeting of the बोर्ड इंस्टेड टू बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन. यानी कि अगर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मैटर है वो हमें फिजिकल मीटिंग में ही डिसाइड करना होगा, तो चेयरपर्सन जो होगा वो ये कहेगा कि हाँ, अब ये मैटर जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू हम डिसाइड नहीं करेंगे, उसके लिए फिजिकल मीटिंग प्रॉपर एक कंडक्ट की जाएगी. 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहना चाहिए. लेकिन a resolution that has been passed by circulation shall have to be necessarily noted in the next
meeting of the board or of the committee as the case may be and made parts of the minutes of such meeting. तो ये जो भी रेजोल्यूशन जो पास होगा वो अगली जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी कमेटी की या बोर्ड की एज द केस में भी उसमें उसके मिनट्स में जो वो रजिस्टर होनी चाहिए. तो एक बार हम कंडीशन एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहले तो जो ड्राफ्ट होगा वो सर्कुलेट किया जाएगा विद द नेसेसरी पेपर्स. फिर सारे डायरेक्टर्स या मेंबर्स में सर्कुलेट होना चाहिए. उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेंड होगा जो इंडिया में होगा. और डिलीवरी कैसे हो सकती है? बाय हैंड, पोस्ट और कोरियर और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ईमेल और फैक्स भी आता है. और लास्ट कंडीशन है कि मेजॉरिटी लोगों ने, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी की बात हो रही है यहाँ, उन्होंने वोट करना चाहिए. दोज हु आर एंटाइटल टू वोट. Moving forward to question number 12, Mr. P, Mr. Q, who are directors of company, inform the company their inability to attend the meeting because notice of the meeting was not served on them. Discuss whether there is any default on part of the company and the consequences thereof. तो यानी कि दो डायरेक्टर्स हैं पी एंड क्यू, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनको नोटिस सेंड नहीं हुआ था. तो बताइए कि कंपनी के ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या डिफ़ॉल्ट जो कंडक्ट किया है उसकी वजह से क्या होगा. अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड shall be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director at his address registered with the company, sent by हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. यानी कि बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस होगा वो कम से कम 7 दिन पहले इन राइटिंग दिया जाना चाहिए टू एवरी डायरेक्टर उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर. और जैसा कि हमने पहले आंसर जो पिछला आंसर किया था उसमें नोट करने वाली बात कही थी कि हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही इंक्लूडेड है नोटिस के लिए, यानी कि कोरियर इज़ नॉट अलाउड. Section 173(4) further provides that every officer of the company whose duty is to give the notice under this section and fails to do so shall be liable to a penalty of 25,000. Okay. In the given case, as no notice was served to Mr. P and Q, who are the directors of the company, thus Section 173(4) every director of the company responsible for default will be punishable with a fine of 25,000. Neither the Companies Act 2013 nor the Companies Meeting of the Board and its Power Rules 2014 lay down any specific provision regarding the validity of a resolution passed by the board in case notice was not served to all directors as stipulated in the Act. We have to go by the provisions of the Act which clearly provide that notice must be sent to every director, failing which resolution passed will be invalid. The Supreme Court in case of Parameshwari Prasad versus Union of India held that resolution passed in the board meeting shall not be valid since notice to all directors was not given in writing. Notice must be given to each director in writing. Hence, even though the directors concerned knew about the meeting shall not be valid and resolution passed at the meeting shall also be not valid. यानी कि क्या कह रहे हैं कि एक्ट में तो स्पेसिफिकली एक्ट में रूल्स में कहीं नहीं लिखा है कि अगर रेजोल्यूशन का जो नोटिस है अगर वो सेंड नहीं हुआ है सब डायरेक्टर्स को तो वो रेजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या होगी. लेकिन अगर हम एक्ट के हिसाब से जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि हर डायरेक्टर को अधिकार है कि उसको नोटिस दिया जाए. फिर चाहे अगर उसको पता भी हो कि मीटिंग होने वाली है तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नोटिस जाना चाहिए, मतलब जाना ही चाहिए. इसमें दूसरे केसेस भी आपने कुछ कुछ बुक्स में पढ़े होंगे बट वी विल स्टिक टू दिस केस दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओनली ऑफ परमेश्वरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डेट अगर नोटिस अगर सेंड नहीं हुआ है तो जो भी रेजोल्यूशन पास होगा ना वो मीटिंग वैलिड होगी ना वो रेजोल्यूशन वैलिड होगा. Coming forward to question number 13, a director goes abroad for a period of more than 3 months and an alternate director has been appointed in his place under section 161(2).
During the period of absence of the original director, a board meeting was called. In this connection, with reference to the provisions of Companies Act 2013, advise whom should be given the notice of the board meeting, ओरिजिनल डायरेक्टर और दी अल्टरनेट डायरेक्टर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं कि एक बात जाननी है कि 161 जो सेक्शन है उसके 4 मेन सब सेक्शन हैं। 161(1) जो कि है एडिशनल डायरेक्टर, 161 सब सेक्शन 2 यानी कि अल्टरनेट डायरेक्टर, 161(3) यानी कि नॉमिनी डायरेक्टर और 161(4) यानी कि कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर। तो कमिंग फॉरवर्ड टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक डायरेक्टर है वो अब्रॉड जा रहा है मोर देन 3 मंथ्स, यानी कि अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। तो वही अपॉइंट हुआ है, अब बीच में ही मीटिंग हुई है, तो बताइए कि नोटिस जो होगा वो किसको दिया जाएगा, ओरिजिनल डायरेक्टर को या फिर अल्टरनेट डायरेक्टर को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161(2), the BOD of the company may, if authorized by the articles or resolution passed by the company in its general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other person in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India। 161(2) कहता है कि BOD के पास अगर ऑथोराइज किया गया है आर्टिकल्स ने या फिर एक जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, तो जो बोर्ड है वो अपॉइंट कर सकती है एक पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर बोल के। किसकी जगह पे, उस डायरेक्टर की जगह पे जो कि आउट ऑफ इंडिया जा रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स। लेकिन ये जो अल्टरनेट डायरेक्टर होगा वो कौन होना चाहिए, ना तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए और ना ही वो किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए उसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। सेक्शन 173(3) यानी कि नोटिस वाला जो सेक्शन है, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड बाय गिविंग notice of at least 7 days before in writing to every director to his registered address and which can be sent by hand delivery, post या फिर electronic means। There is no legal precedence whether the notice of the meeting is to be sent to the original director or the alternate director, but as a matter of prudence, the notice of the meeting may be served to both अल्टरनेट एज वेल एज ओरिजिनल हु इज़ टाइम बीइंग आउटसाइड इंडिया। यानी कि कह रहे हैं कि कोई लीगली तो हमारे ऊपर कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा कि ओरिजिनल डायरेक्टर को देना है या अल्टरनेट को देना है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, सेक्रेटरियल गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बोल के भी हम दोनों को सेंड कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Examine with reference to the provisions of Companies Act whether notice of board meeting is required to be sent to the following। ठीक है, वापस वैसा ही क्वेश्चन है, हर डायरेक्टर को भेजना है हमें। इन an interested director, a director who has expressed his inability to attend meeting, a director who has gone abroad for less than 3 months। तो इसमें वही है कि सब डायरेक्टर्स को ही भेजना है, सब मतलब सब ठीक है। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर यानी कि जो वोट नहीं कर सकता, लेकिन तो उसको भी क्या होगा, तो नोटिस, मीटिंग का नोटिस जो है वो तो उन्हें सेंड करना ही होगा। एवरी डायरेक्टर मस्ट बी गिवन अ प्रॉपर नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग। इट इज़ इमटेरियल वेदर अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और नॉट। इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, नोटिस मस्ट बी गिवन टू हिम even though he is precluded from voting at the meeting। A director who has expressed his inability to attend a particular meeting, he will not be able to attend the meeting, but notice must be sent to this director also। A director who has gone abroad for less than 3 months, a director who has gone abroad is still a director, therefore he is entitled to receive notice during his stay abroad। Companies Act 2013 allow डिलीवरी ऑफ नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो, यानी कि आप ईमेल कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, तो फिर उसको नोटिस तो भेज ही दो। Also, this is important because Companies Act 2013 permits a director to participate in meeting through video conferencing or other audio visual means, यानी कि या तो VC के थ्रू या बाकी कुछ मीन्स से भी, ऑडियो विजुअल मीन्स से वो अटेंड कर सकता है, फिर वो भले ही किसी भी पार्ट के, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में।
So moving ahead to question number 15. Out of the powers exercisable by board under section 179, the board wants to delegate managing director of the company the power to borrow monies otherwise than on debentures. Advise whether such a delegation is possible. Would your answer be different if delegation is given to the manager or any other principal officer including branch officer? ठीक है, जो पावर्स एक्सरसाइजेबल जो है बोर्ड कर सकता है अंडर सेक्शन 179, तो वो जो पावर्स है वो डेलीगेट करना चाहता है, देना चाहता है टू एमडी को. कौन सी वाली है? मनीज बोरोड करने वाली, अदरवाइज देन ऑफ डिबेंचर्स. और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम मैनेजर को या एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिसर को देंगे तो क्या वो चलेगा, क्या ऐसा कर सकती है बोर्ड? Under section 179(3) of the Companies Act 2013, the board of directors of a company shall exercise the following powers on behalf of the company by means of resolution passed at the meeting of the board. यानी कि क्या है ये जो पावर्स दी गई हैं अंडर सेक्शन 179, वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है? सिर्फ बोर्ड ही एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि मेंबर्स या फिर और कोई पर्सन, अदर पर्सन को हम ऑथोराइज नहीं कर सकते. और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे वो मीटिंग पे ही होंगे, यानी कि सेक्शन 175 जो कि है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, वहाँ पे ये कंडक्ट नहीं किए जा सकते. प्रॉपर फिजिकल मीटिंग ही होनी चाहिए इसके लिए. तो इसके अंदर यहाँ पे हमें याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम याद कैसे करेंगे उसको वो भी हम साथ साथ देखेंगे. सबसे पहला क्या है? टू मेक कॉल्स ऑन shareholder in respect of unpaid money on their shares, to authorize buyback of securities under section 68, to issue certificates including debentures whether in or outside India, to borrow monies, to invest funds of the company, to grant loans or give guarantee or to provide security, to approve financial statements and board report, to diversify the business of the company, to approve amalgamation, merger, reconstruction, to take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company or any other matter. तो इसको याद करने के लिए हम एक कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम ए दे दें. फिर बायबैक वाले को हम बी से याद रख सकते हैं. मेकिंग कॉल्स जो है उसको सी दे सकते हैं. और जो इशू सिक्योरिटीज़ है इंक्लूडिंग डिबेंचर, उसको हम डी दे सकते हैं. और ये जो डी ई एफ है ये हम याद रख सकते हैं कि पहले हम बोरो करेंगे मनी, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे और हम ग्रांट भी कर सकते हैं, लोन, या दूसरे को भी हम गारंटी, लोन, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये जो लास्ट एच आई जे वाले जो पॉइंट हैं वो हम याद रखेंगे कि हम बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है. हम अमालगमेशन कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर हम कोई और कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, उनका कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल स्टेक कर सकते हैं, या फिर हम बिज़नेस को न्यू फील्ड में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं. तो इस तरह से आप एक सीक्वेंस बना के ये सारे पॉइंट याद रख सकते हैं. और क्योंकि याद रखना ज़रूरी भी है, सेक्शन 179(3). और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ETC वाला पॉइंट है, उसकी तो कोई बात नहीं है. आगे हम पढ़ते हैं. इसमें लिखा है द प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड may by resolution passed at a meeting delegate to any committee of directors, MD, manager or any other principal officer of the company, or in case of a branch office, principal officer of the branch office, the powers specified in clause D to F. यानी कि जो D to F यानी कि बोरो मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स और ग्रांट गारंटी और सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट हैं DEF, वो जो हैं वो हम डेलीगेट कर सकते हैं टू कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, MD, मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या फिर अगर ब्रांच ऑफिस है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को भी हम डेलीगेट कर सकते हैं. ऑल्सो मैटर्स रेफर्ड इन क्लॉज DEF यानी कि वही अभी जो पहले हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए वही पॉइंट may be decided by the board by circulation instead of a meeting at proper meeting for section 8 कंपनीज. यानी कि अगर सेक्शन 8 कंपनीज है तो उनको तो एक और छूट दी है कि उनको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करके भी ये जो 3 डिसीजन हैं DEF, बोरो ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड ग्रांट ऑफ लोन एंड गारंटी, ये वो RBC यानी कि
175 के सेक्शन के अंदर भी वो पास कर सकते हैं। बट ये याद रखना है कि ये सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए ही है। सो हमारा फाइनल आंसर आता है कि येस, एज पर द प्रोविजन इट इज़ क्लियर दैट द पावर टू बोरो मनी अंडर क्लॉज डी may be delegated to MD, मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि ये कंपनी कर सकती है। Coming to the next question, question number 16. Advise the Board of Directors of Spectra Papers Limited regarding the validity and extent of their powers under the provisions of the Companies Act in relation to the following matter. First is buyback of shares of the company for the first time up to 10% of the paid up equity share capital without passing SR. तो क्या वो बाईबैक इशू कर सकती है फॉर द फर्स्ट टाइम अप टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बिना एसआर पास किए? तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 179(3), BOD ऑफ द कंपनी shall exercise the power to authorize buyback of securities under section 68 on behalf of the company by means of resolution passed at the meeting of the board, यानी कि बोर्ड मीटिंग में ही कर सकते हैं और 68 भी उनको फॉलो करना होगा। According to section 68, no company shall purchase its own shares or specified securities unless buyback is authorized by its articles and special resolution has been passed at the general meeting authorizing the buyback. However, nothing contained in this clause shall apply to a case where buyback is 10% or less of the total paid up equity capital and free reserves of the company, and buyback is authorized by the BOD by means of a resolution passed at the meeting. इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 68 क्या कहता है कि अगर खुद के शेयर बायबैक करने हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि अव्वा जो होता है उसने अथॉराइजेशन देना चाहिए, और दूसरा है कि एसआर पास करने की ज़रूरत है एट द जनरल मीटिंग। लेकिन ये जो दो कंडीशंस हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर बायबैक जो है वो लेस देन 10% है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, और अगर बायबैक जो है वो ऑथोराइज कर दिया है बोर्ड ने ही बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द मीटिंग, तो हमें एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है। Thus we can say that in case of buyback of the company for the first time up to 10% of the paid up share capital, a special resolution will not be required if such buyback has been authorized by the BOD by means of a resolution passed at the meeting. अगर रेजोल्यूशन पास किया है बोर्ड ने तो फिर ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। डेलीगेशन ऑफ पावर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड इन शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी। तो क्या हम एमडी को पावर डेलीगेट कर सकते हैं? क्योंकि बोर्ड का हमने पढ़ा था लास्ट आंसर में कि बोर्ड ही पावर एक्सरसाइज करती है, तो क्या वो पावर टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड क्या वो एमडी को दे सकते हैं? तो इसका आंसर है एस पर क्लॉज नंबर ई ऑफ 179(3), BOD of a company shall exercise the power to invest funds of a company on behalf of the company by means of resolution passed at the meeting. The board under the proviso to 179(3) delegate the power to invest funds of the company by board resolution passed at a duly convened board meeting. However, investment in shares of other companies will be governed by applicable provisions of section 186. सिंस इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज़ गवर्नड, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 179 ने भी पावर दिया है कि वो डेलीगेट कर सकता है, लेकिन क्या बात आती है जब दो सेक्शन एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो जो जनरल सेक्शन है उसके ऊपर स्पेसिफिक सेक्शन प्रिवेल करता है, यानी कि 179 जो है वो जनरल सेक्शन है और 186 जो सेक्शन है वो है इसका स्पेसिफिक सेक्शन फॉर पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम वो फॉलो करेंगे। और 186 क्या कहता है? नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड और लोन और गारंटी गिवन बाय कंपनी अनलेस रेजोल्यूशन सैंक्शनिंग इट इज़ पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट, यानी कि एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना होगा बोर्ड को
और साथ ही साथ उनको अप्रूवल लेना होगा, प्रायर अप्रूवल लेना होगा ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न वेयर एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग इज ऑब्टेन। अगर लोन ले रखा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उनका प्रायर अप्रूवल और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है वो भी पास करना होगा बोर्ड को। सेक्शन 186 डू नॉट प्रोवाइड फॉर डेलीगेशन, यानी कि जो सेक्शन 186 है स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो कहता है कि डेलीगेशन नहीं दिया जा सकता। Hence, the proposed delegation of power to MD to invest funds of the company in shares of some other company is not in order। यानी कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि 186 ऐसा नहीं कहता है। Moving forward to question number 17, an audit committee of a listed company constituted under section 177 of the Companies Act 2013 submitted its report of recommendation to the board. The board, however, did not accept the recommendation. In the light of the situation, analyze whether A. The board is empowered not to accept the recommendations of the audit committee, and B. If so, what alternative course of action would board resort to। यानी कि इस केस में क्या हुआ है, लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है अंडर सेक्शन 177 और उसने जो भी रिकमेंडेशन दिए बोर्ड को वो बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो क्या वो बोर्ड ऐसा कर सकती है कि वो एक्सेप्ट ना करे, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसको अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या फॉलो करना होगा। सो एज पर सेक्शन 177 of the Companies Act 2013, audit committee must be formed within a year of commencement of the act or within a year of incorporation of the company, as the case may be, and will consist of at least 3 directors, out of which independent directors shall constitute majority। यानी कि 177 क्या कहता है कि audit committee must be constituted within 1 year of the commencement, यानी कि commencement of the act, या फिर जो कि irrelevant हो चुका है, या फिर 1 ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी बनती है उसके 1 साल के अंदर लिस्टेड कंपनी हो तो वो उसको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और जो मैक्सिमम होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, यानी कि एटलीस्ट 3 का है तो एटलीस्ट 2 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। अंडर सेक्शन 177 बोर्ड रिपोर्ट विच इज़ लेड बिफोर a general meeting of the company under section 134 where the financial statements of the company are placed before the members must disclose the composition of audit committee, and also where the board has not accepted any recommendations of the committee, and same shall be disclosed along with reasons thereof। Therefore, the board is empowered not to accept the recommendation but only under the genuine circumstances and with legitimate reasons। यानी कि 177 कहता है कि जो बोर्ड रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करनी होती है ले बिफोर होती है जनरल मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो उसमें बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड को मेंशन करना होता है कि ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या है, और साथ ही साथ ये मेंशन करना होता है कि जब कभी भी अगर बोर्ड ने रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी का एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो कब वो सिचुएशन और उनका रीज़न भी कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है वो सब उनको मेंशन करना होता है बोर्ड रिपोर्ट में। और ये कब वो नकार सकती है, खाली जेन्युइन केसेस में और लेजिटिमेट रीजंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बिना मतलब के ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को बोर्ड ना कर दे। इफ़ बोर्ड डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन of the audit committee, it shall disclose the same in the report under section 134 placed before the general meeting। यानी कि शेयर होल्डर को उनको रीज़न बताने ही होंगे जनरल मीटिंग में कि वो कब ऑडिट कमेटी जो कंस्टिट्यूट हुई है उनका डिसीजन वो फॉलो नहीं कर रहे, उनका रिकमेंडेशन वो बोर्ड फॉलो नहीं कर रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18, MNC Limited, a company whose paid up capital was 4 crore, has issued right shares in the ratio 1:1. The said company is listed with Mumbai Stock Exchange. Whether the company is required to appoint any audit committee, and if yes, draft a suitable board resolution to appoint an audit committee covering the various aspects as provided in Companies Act 2013। तो MNC लिमिटेड एक कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ दिया गया है और वो लिस्टेड कंपनी भी है, और बताना है कि क्या वो ऑडिट कमेटी उसको कंस्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, और अगर है तो सुटेबल हमको बोर्ड रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करना है उसका। सो एज पर सेक्शन 177
of the Companies Act 2013, the BOD of every listed company and such other class or classes of company as may be prescribed shall constitute an audit committee. Therefore, MNC being a listed company will be bound to constitute an audit committee under this act. यानी कि जो पेड अप शेयर कैपिटल वाली बात दी है वो सब इररेलेवेंट है. अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट इरेस्पेक्टिव वेदर इट फॉल्स अंडर द लिमिट्स और नॉट, इट हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट अ audit committee. Further, under section 177, the audit committee shall consist of minimum 3 directors with independent directors forming majority. Majority members of audit committee including the chairperson shall be person with ability to read and understand the financial statement. यानी कि उनको मेजॉरिटी जो मेंबर होंगे उनको एटलीस्ट रीड और अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतनी एबिलिटी तो उनमें होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन. द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन of the constitution of audit committee may be as follows. Resolved that pursuant to the provisions contained in section 177 of the Companies Act 2013 and applicable clause of listing agreement with Mumbai Stock Exchange, an audit committee of the company be and hereby constituted with effect from conclusion of this meeting with members as under: Mr. A, Mr. B, Mr. C and Mr. D independent directors, Mr. F.E. being the financial executive and Mr. M.D. being the managing director. Further resolved that the chairman of the committee, who shall be independent director, be elected by the committee member from amongst themselves. यानी कि इन चारों में से ही कोई एक chairman बनेगा. Further resolved that the quorum of the meeting of audit committee shall be chairperson of the audit committee and 2 members. यानी कि मिनिमम 3 people must be there, 1 chairperson and 2 other members other than the managing director. Further resolved that the terms of reference of audit committee shall be in accordance with the provisions of section 177, उनको fully follow करना है. Further resolved that audit committee shall conduct discussions with auditor periodically about the internal control system, scope of audit including observation of the auditor. यानी कि उनको periodical discussion करने होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में और स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में, और ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन भी लेना होगा. Further resolved that audit committee shall review quarterly and annual financial statements and submit the same to the board with its recommendation. क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने होंगे, उनके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी टू द बोर्ड. फर्दर रिजॉल्व दैट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द ऑडिट कमिटी ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द बोर्ड. ठीक है, तो जो भी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर अगर कोई भी रिकमेंडेशन देती है ऑडिट कमिटी तो वो एज सच तो बाइंडिंग होगा ऑन द बोर्ड. हाउएवर, where such recommendation are not accepted by the board, the reason for the same shall be recorded in the minutes of the board meeting and communicated to the shareholders. यानी कि यहाँ पे वो 134 वाला जो पॉइंट है कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको मेंशन करना होगा बोर्ड को कि कब कब उसने रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी के फॉलो नहीं किए हैं, ये सब बातें उसको शेयर होल्डर को बतानी होगी, तो वो बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू बताएगी. Further resolved that the company secretary of the company shall be the secretary to the audit committee. Further resolved that the chairman of the audit committee shall यानी कि उसको अटेंड करना ही है annual general meeting of the company to provide any clarification on the matter relating to audit as may be required by the members. यानी कि जो चेयरपर्सन होगा वो हमेशा ही एनुअल जनरल मीटिंग को तो अटेंड करेगा ताकि वो मेंबर्स की जो भी क्वेरीज हो उसको एड्रेस कर सके. Further resolved that the board report and annual report to the members of the company shall include the particulars of constitution of audit committee and the details of non-acceptance of any recommendation by the audit committee with reasons thereof. यानी कि जो बोर्ड रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट होगी मेंबर्स को, उसके अंदर ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन और जब जब बोर्ड ने उनका रिकमेंडेशन फॉलो नहीं किया है वो सारी बातें उसको मेंशन करनी होगी. So now coming forward to question number 19. The last 3 years balance sheet of PTL Limited contains the following information figures. तो हमें 3 साल की बैलेंस शीट दी हुई है 2016, 2017 और 2018 की.
उसके अंदर पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस इन P&L, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ है। ऑन गोइंग थ्रू अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, फॉलोइंग इज ऑल्सो डिटरमाइंड: नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, 3 साल का दिया हुआ है। इन द ensuing board meeting scheduled to be on 5th November 2018, among other items the following agenda items are also appearing। तो 5th नवंबर 2018 को बोर्ड मीटिंग हेल्ड होने वाली है। उसके अंदर जो एजेंडा में 2 आइटम जो हैं वो लिखे हुए हैं: टू डिसाइड अबाउट द बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, and second is to decide about the contributions made to the charitable funds. Based on the above information, you are required to find out, as per the provisions of the Companies Act 2013, the amount up to which board can borrow from the financial institution and the amount up to which the board can contribute to the charitable funds during the financial year 2018-19 without seeking approval in the general meeting। तो सबसे पहले आंसर करेंगे हम बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एज पर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद रखना है। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बोर्ड ऑफ a company without obtaining approval of shareholder in general meeting can borrow money, including monies already borrowed, up to an amount which does not exceed aggregate of paid up capital, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि कंपनी क्या कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो बिना किसी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के वो ही खुद मनी बोरो कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है कि जो मनी ऑलरेडी बोरोड है वो कि शुड नॉट एक्सीड एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और इसके अंदर पॉइंट जो याद रखने के हैं कि सच बोरोइंग शैल नॉट इंक्लूड टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑल्सो फ्री रिजर्व्स डू नॉट इंक्लूड रिजर्व सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि अगर फ्री रिजर्व्स में कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो अगर रिजर्व्स क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि रिडेम्पशन रिजर्व जो इस क्वेश्चन में भी था, वो हमें कंसिडर नहीं करना है। और बोरोइंग जो होगी वो टेम्पररी लोन्स को एक्सक्लूड करके होगी। ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स ऑफ द बिजनेस में अगर टेम्पररी लोन्स ले रखें तो उसके अलावा देखना है। सिंस द डिसीजन टू बोरो इज टू बी टेकन इन मीटिंग हेल्ड on 5th November, the figures relevant 2018, the figures relevant for this purpose are figures of the balance sheet as at 31st March 2018। क्योंकि नवंबर 2018 की मीटिंग है, इसके लिए हम उसकी लेटेस्ट बैलेंस शीट जो है 31st March 2018 वो वाली हम रेफ़र करेंगे। According to the above provisions, the board of directors of PTL Limited can borrow without obtaining approval of shareholders in general meeting up to an amount calculated as follows। तो हमने क्या देखा कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है। इसमें टेम्पररी लोन्स को इंक्लूड नहीं करना है, और जो फ्री रिजर्व्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक रिजर्व्स अगर हैं तो उन्हें कंसिडर नहीं करना है। इस तरह और हमें 2018 की बैलेंस शीट लेनी है, तो हम ये वाले फिगर्स फॉलो करेंगे, ये वाले बैलेंस शीट लेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पेड अप कैपिटल है हमारा 75 और जनरल रिजर्व है 50 प्लस क्रेडिट बैलेंस जो है P&L का वो भी हम कंसिडर कर लेंगे, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गया है। और दूसरा बचा है हमारा ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हम ले लेंगे। तो कितना हुआ, 75 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 2। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी यही वाली अमाउंट कंसिडर किए, 75 50 10 और 2, क्योंकि रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इसके लिए वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इनका टोटल जो है वो आता है 137 लैक्स। इसमें से हमें क्या करना है कि अब तक जितना बोरो कर चुका है ये टोटल बोरोइंग पावर है बोर्ड का, जो इतना वो कर सकती है, तो इतना उसका एग्रीगेट में होगा, क्योंकि पेड अप और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम ये टोटल वो बोरो कर सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ
मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। लेकिन उसने क्या है, बोर्ड ने अब तक ऑलरेडी 30 करोड़ जो है, सॉरी 30 लैक्स जो है वो बोरो कर रखा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 30 करोड़ जो है वो ऑलरेडी बोरो कर रखा है, तो इसलिए ये जो 30 करोड़ है वो हमें इसमें से लेस करना होगा। तो अब ये जो फिगर आती है वो है 107 लैक्स। तो इतना अमाउंट है वो बोर्ड बोरो कर सकती है विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड। इसके लिए सेक्शन 181 अप्लाई होता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू जेन्युइन चैरिटेबल फंड्स up to an amount in a financial year does not exceed 5% of the average net profits during the 3 financial years immediately preceding the financial year। यानी कि अगर चैरिटेबल फंड्स में अगर उनको कंट्रीब्यूशन करना है विदाउट ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर का अप्रूवल इन जनरल मीटिंग, यानी कि ये तो बोर्ड कर ही सकती है, अगर इससे ज़्यादा करना होगा तो उनको बोर्ड शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। तो वो जो लिमिट क्या है एज पर सेक्शन 181 कि 5% होगा फॉर ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के प्लस उसके 3 सालों का, जो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनका 3 सालों का एवरेज लेना है हमें नेट प्रॉफिट का। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द Companies Act, the board of PTL Limited can make contribution to charitable funds without obtaining approval of the shareholder in general meeting up to an amount calculated as follows। तो ये जो 3 साल का प्रॉफिट जो टेबल के नीचे दिया हुआ था वो वाला हम कंसिडर करेंगे। ये नेट प्रॉफिट जो तीनों साल का है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे। तो वो आता है 66 लाख, टोटल आता है 66 लाख। उसका एवरेज यानी कि डिवाइड बाय 3 करने से आ जाएगा 22 लैक्स, और उसका हम निकालेंगे 5%। 22 लैक्स का 5% आता है 1,10,000। तो ये जो अमाउंट है इतना बोर्ड बिना किसी अप्रूवल के डायरेक्टली चैरिटेबल फंड में डोनेट कर सकती है। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डोनेटेड बाय द BOD टू अ जेन्युइन चैरिटेबल फंड होना चाहिए बाय PTL लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 विल बी 1,10,000 विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। So coming forward to the next question, question number 20. Following is the data relating to Prince Company Limited. Authorized capital of equity shares वो है 100 करोड़, पेड अप कैपिटल है 40 करोड़, जनरल रिजर्व्स है 20 करोड़, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, लोन है, लॉन्ग टर्म का है और शॉर्ट टर्म का क्रेडिटर दिया है। Board of Directors of the company by a resolution passed at its meeting decided to borrow an additional sum of 90 crore from the company's banker. You being the financial advisor, advise the board of directors the procedure to be followed as required by the Companies Act। तो ये देखिए ये प्रोविज़न वही यहाँ पे अप्लाई होगा जो अभी हमने लास्ट किया था, क्वेश्चन में किया था 181 का C, तो वही अप्लाई होने वाला है। तो हम देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं हम अपने हिसाब से कितना कर पाते हैं। तो उसमें क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल लेना है प्लस फ्री रिजर्व्स लेने हैं और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है। लेकिन इसमें क्या, फ्री रिजर्व्स में जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया गया है तो वो नहीं लेना है, और जो बोरोइंग होगी वो उसमें टेम्परेरी लोन्स इंक्लूड नहीं होंगे। इस अमाउंट का हम 100% यानी कि हम बोरो कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग अभी तक की हमारी जो बोरोइंग होगी वो होगा। अगर इससे ज़्यादा हम लेना चाहते हैं तो बोर्ड को क्या करना होगा, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाना होगा, SR पास करवाना होगा मेंबर्स से। तो अब यहाँ पे देखिए कि 40 है पेड अप शेयर कैपिटल और ये हो गया 20, तो 40 + 20 हो गया है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो ये हो गया हमारा 62
करोर्स, लेकिन हम इसमें लॉन्ग टर्म देखिए, लॉन्ग टर्म है यानी कि टेम्प्रेरी नहीं है, तो ये हम पूरा का पूरा माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये हमें लेना, ये हम ऑलरेडी बोरो कर सकते हैं, ये हम टोटल बोरो कर सकते हैं, मतलब बोर्ड बोरो कर सकता है, लेकिन बोर्ड ने ऑलरेडी 10 बोरो कर रखा है, यानी कि अब वो कितना कर सकता है 52 करोर्स, और वो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 90 करोर्स, यानी कि हमारे हिसाब से ये नहीं कर सकता, उसको प्रोसीजर, बोर्ड को प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि उसको जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी होगी और मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा। अब हम आंसर पढ़ लेते हैं एक बार। बोरोइंग बाय द कंपनी 180 सेक्शन लगने वाला है। एज पर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी of the Companies Act, BOD of a company without obtaining approval of shareholder in general meeting through special resolution can borrow funds including funds already borrowed up to an amount which does not exceed aggregate of paid up capital, free reserve, security premium. Such borrowing shall not include temporary loans borrowed in ordinary course of business. Also, free reserves do not include reserves set apart for specific purpose. According to the provisions, amount can be calculated as, वही जा रहा है देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल 40, जनरल रिजर्व 20, रिडेम्पशन रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इसके लिए वो कंसिडर नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 20, तो एग्रीगेट ऑफ पेड अप कितना आ रहा है 62 करोड़, यानी कि हम टोटल बोरोइंग पावर कितना है बीओडी का 62 है, लेकिन उसमें से उसने ऑलरेडी जो है 10 करोड़ जो है वो बोरो कर रखा है, तो यानी कि ये हमें माइनस करना होगा और फिर हमारे पास अमाउंट आएगी 52 करोड़ की। In the present case, the director of Prince Company Limited, by a resolution passed at its meeting, decided to borrow additional sum of 90 crore. Thus, the borrowing will be beyond the powers of the board. Thus, the management of Prince Company Limited should take necessary steps to convene a general meeting and then pass a special resolution by the members in the meeting, as stated in section 180 subsection 1 clause C of the Companies Act. Then the borrowing will be valid and binding on the company and its member. यानी कि जो कंपनी ने BOD ने अगर ऐसे ही बिना कोई जनरल, अगर वो बोर्ड मीटिंग में अगर ये डिसीजन ले लेती है तो वो गलत होगा, उसको जनरल मीटिंग बुलवानी होगी और वहाँ पे मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा। इसमें एक ये है कि क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर होती तो उसके इसमें 180 अप्लाई नहीं होता, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रिंस कंपनी लिमिटेड है, यानी कि एक ये पब्लिक कंपनी है, तो इसके लिए 180 सेक्शन अप्लाई होगा और इसको वो फॉलो करना होगा। So now moving forward to the next question, question number 21. One of the objects clause of the Memorandum of Association of Info Company Limited conferred upon the company power to sell undertaking to another company with identical objects. Companies Act, Companies articles also conferred upon the directors, whereby power was conferred upon to them to sell or otherwise deal with the property of the company. At an extraordinary general meeting of the company, members passed an ordinary resolution for the sale of its assets on certain terms and authorized the directors to carry out the sale. Directors refused to comply with the wishes of the members, whereupon it was contended on behalf of the members that they were the principals and directors, being their agents, were bound to give effect to their member, यानी कि members का decision. Examining the provisions of the Companies Act 2013, answer whether the contention of members against the non-compliance of members' decision by the directors is tenable. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि महुआ ऑफ द कंपनी, वो कहता है कि उसने पावर दी है टू सेल द अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी, और आर्टिकल्स यानी कि अवा ऑफ द कंपनी उसने क्या कहा है कि डायरेक्टर्स ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं टू सेल और अदरवाइज डील विद द प्रॉपर्टी। लेकिन क्या किया, मेंबर्स ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड की और उसमें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि सर्टन एसेट्स को सर्टन टर्म्स पर सेल करना होगा, और डायरेक्टर्स को ऑथोराइज किया, हाँ ऑथोराइज इन द सेंस कि उनको ऑर्डर दिया कि वो कैरी आउट करें द सेल, लेकिन डायरेक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया है। और मेंबर्स का कहना है कि वो प्रिंसिपल्स हैं और डायरेक्टर्स उनके एजेंट हैं और इनके लिए दे आर बाउंड टू गिव इफेक्ट टू देयर डिसीजन। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या मेंबर ऐसा
कर सकता है कि क्या वो डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दे सकता है, और आर द डायरेक्टर्स बाउंड टू फुलफिल देम। तो पहले एक बात समझनी है कि कंपनी के केस में एक होते हैं मेंबर और एक होते हैं डायरेक्टर्स, यानी कि बीओडी। तो जो कुछ पावर्स हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए कन्फाइंड है, और कुछ पावर्स हैं जो बीओडी एक्सरसाइज करते हैं। तो जो बीओडी के पावर्स हैं वो मेंबर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, और जो मेंबर्स के पावर हैं वो बीओडी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। एक सेट ऑफ उन्होंने कुछ कुछ पावर्स अपने में बांट रखे हैं, और दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात हमें पहले याद रखनी है। अब हम आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द मेंबर्स टू यूज़ अप द पावर्स which by the articles are vested in the directors by passing a resolution in general meeting। यानी कि क्या मेंबर्स जो पावर्स डायरेक्टर को दिया गया है आर्टिकल्स के थ्रू, क्या वो पावर्स को वो मेंबर्स हड़प सकते हैं विदाउट एनी राइट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो पावर्स ऑफ बोर्ड आंसर है in accordance with the provisions of the Companies Act as contained under section 179, the BOD of the company shall be entitled to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to exercise, provided that in exercising such power or doing such act or thing, the board shall subject to the provisions of contained in that behalf in this act or in memorandums or articles or in any regulations not inconsistent therewith and duly made thereunder, including regulations made by the company in the general meeting। यानी कि कंपनी जो जो पावर एक्सरसाइज कर सकती है वो बीओडी एक्सरसाइज करेगी, और जो पावर्स होंगी वो एज पर द प्रोविजंस होंगी, या फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर जो लिखी हुई होगी वो होगी। लेकिन इस पे गौर तलब करने वाली बात ये है कि जो महुआ में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी लिखा होगा, वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि एक्ट विल प्रिवेल ओवर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में हमेशा के लिए एक बात याद रखनी चाहिए हमें कि जो महुआ हैं वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं, ना कि उनको लीनियंट कर सकते हैं। लीनियंसी अलाउड नहीं है, स्ट्रिंजेंट आप कर सकते हो इन सर्टन केसेस। Provided further that the board shall not exercise any power or do any act or thing which is directed or required, whether under this act or by the members or articles of the company, otherwise to be exercised or done by the company in the general meeting। यानी कि पहले वाली बात ही यहाँ पे कही गई है कि जो बोर्ड होगी वो कोई सी भी पावर या कोई सा भी एक्ट वैसा नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है जो कि एक मेंबर्स को अलाउड है करना। तो बोर्ड मेंबर्स के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इन शॉर्ट, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो 180 जो सेक्शन है वो बताता है कि वो सारी पावर्स जो बोर्ड एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन कब? जब उसको कंसेंट मिल गई हो बाय द मेंबर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब टास्क को करने के लिए। क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 डिफाइंस वन सच पावर एज द पावर टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली whole of the undertaking of the company, or where a company owns more than one undertaking of the whole or the substantially the whole or any such undertaking। यानी कि सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है कि पावर टू सेल है, या फिर लेस कर सकता है, या अदरवाइज डिस्पोज कर सकता है कोई भी अंडरटेकिंग, और अगर एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग हो तो उसका पार्ट या फिर सब्सटेंशियली द होल बोर्ड कर सकता है डिस्पोज, सेल या लीज, अगर उसके पास पावर्स हों और एसआर पास किया गया है by the members। Therefore, the sale of the undertaking of a company can be made by the BOD only with the consent of members via special resolution। Even if power is given to the board by memorandum and articles, the sale of undertaking must be approved by shareholders in the general meeting by passing an SR। यानी कि क्या खाली महुआ में जो अगर आप मेंशन कर दोगे कि ये पावर उनको दी गई है, लेकिन अगर एक्ट में ही वो पावर
बोर्ड को नहीं दी गई है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये पावर बोर्ड को नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि हमको एक्ट को ही फॉलो करना होगा। और एक्ट क्या कहता है कि सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ कुछ भी करना है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, वो भी इन द फॉर्म ऑफ special resolution. Therefore, the correct procedure to be followed for the board to approve the sale of undertaking, clearly specifying the terms of such sale, and then convene a general meeting of the members to have a proposal approved by the special resolution. तो क्या करना होगा, बोर्ड जैसे कि हम डिविडेंड के केस में देखते हैं ना कि बोर्ड जो होती है वो रिकमेंडेशन देती है और फिर फाइनल जो अप्रूवल होता है, डिक्लेरेशन जो होता है वो मेंबर्स करते हैं। सिमिलरली जो 181 जो सेक्शन है उसके अंदर जो ये सेल और डिस्पोज ऑफ जो करना होता है अंडरटेकिंग का, उसका जो अप्रूवल होगा ना, जो प्रपोजल होगा फॉर अप्रूवल वो देगी बोर्ड और उसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगे वो स्पेसिफाई करेगी और फिर वो जनरल मीटिंग कन्वेन करेगी मेंबर्स के लिए, जहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो प्रपोजल को अप्रूव करेंगे बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बोर्ड प्रपोजल रखेगा और मेंबर्स जो होंगे वो प्रपोजल को अप्रूव करेंगे बाय एसआर। इन द गिवन केस द प्रोसीजर फॉलोड इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट एंड वायोलेटिव ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो नहीं किए हैं और वो भी वायोलेशन में है ऑफ द एक्ट कि इन्होंने आर्टिकल्स में ही अलग अलग पावर्स दे दिए और जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड की है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो फॉलो ही नहीं किया है। द शेयर होल्डर्स कैन नॉट on their own make out a proposal of sale and pass an ordinary resolution to implement it through the directors। तो उन्होंने प्रपोज कर दिया लेकिन प्रपोज एक्चुअल में कौन करना चाहिए, बीओडी ने करना चाहिए। The contention of the shareholder is incorrect in the first place as it is not within the authority to approve the proposal independently of the board of directors। यानी कि क्या है, वो बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन लिए बिना वो लोग अप्रूवल नहीं दे सकते। पहले बोर्ड जो है वो प्रपोजल देगी और उसके बाद शेयर होल्डर हैं वो अपना अप्रूवल देंगे बाय पासिंग एसआर। इट इज़ फॉर द बोर्ड टू अप्रूव अ प्रपोजल ऑफ सेल and then members to approve it by a special resolution. Accordingly, the contention of the member that they were the principals and directors were being their agents are bound to give the effect is not correct। यानी कि जो मेंबर का कहना है कि वो लोग प्रिंसिपल्स हैं और डायरेक्टर जो हैं वो इनके एजेंट हैं एंड दे हैव टू वर्क अपॉन देयर इंस्ट्रक्शंस, ऐसी कोई ये रिलेशनशिप है ही नहीं मेंबर्स और डायरेक्टर्स का। ये दोनों एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और कोई भी प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है ही नहीं, तो ये बात ही गलत है। फर्दर इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर टू द डायरेक्टर्स डू नॉट एक्ट एज एन एजेंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स और इवन ऑल द मेंबर्स। ठीक है, तो डायरेक्टर्स ना तो एजेंट हैं ही नहीं, ना तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का बोल सकते हैं हम उनको कि वो उनके एजेंट है, ना ही हम उनको बोल सकते हैं कि ऑल मेंबर्स के वो एजेंट हैं। द मेंबर्स देयरफॉर कैन नॉट by resolution pass a majority or even unanimously supersede the powers of directors or instruct them on how they shall take exercise their powers। तो मेंबर्स चाहे फिर तुम मेजॉरिटी की तो बात ही छोड़ दो, तुम अगर मेंबर्स सारे के सारे 100% यूनानिमसली भी अगर कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे तो वो लोग उनकी पावर को सुपरसीड नहीं कर सकते डायरेक्टर्स की पावर को, और ना ही वो उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो अपनी पावर कैसे एक्सरसाइज करें। The shareholders have, however, the power to alter the articles of association in the manner in which they like, subject to the provisions of the Companies Act। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, वो जो पावर्स अगर वो बोर्ड को दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पावर्स जो अगर वो दे रहे हैं एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, उसको वो अल्टर कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में रहते ही कर सकते हैं। So now moving forward to question number 22, which is the last question for today, as it is the last question of for the chapter meetings of the board and its powers. R Limited wants to constitute an audit committee. Draft a board resolution covering the following matters: member of the audit committee, chairman of the audit committee, any two functions of the audit committee। तो ये पहले फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, ये हमने पहले भी पिछले आंसर्स में ये किया हुआ है। वैसे ऑडिट कमेटी बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना है हमें। रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन नंबर 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स बी एंड इज हियर बाय कॉन्स्टिट्यूटेड। मिस्टर
4 हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया है और एक एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर और एक सीएफओ है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. Further resolved that the chairman of the audit committee shall be elected by its members from amongst themselves and shall be an independent director. यानी कि इनमें से एक चेयरमैन होगा. Further resolved that the quorum for the meeting of audit committee shall be 3 directors other than the managing director. यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर quorum में काउंट नहीं हो रहा है, उसके अलावा 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, out of which at least 2 must be independent directors. Resolved further that the audit committee shall perform all functions as laid down under section 177 of the Companies Act, including but not limited to. यानी कि इसके ये तो होंगे लेकिन इसके अलावा और कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ही पावर्स कही थी, इसके लिए हम 2 ही पावर्स इसकी बता रहे हैं. मेक द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स and review and monitor the independence and performance of auditor of the company and the effectiveness of audit process. तो यहाँ पे हमने जनरल पॉइंट लिखते हैं कि जो ऑडिट कमेटी होगी वो ऑडिटर्स के रिलेशन में सबसे पहले क्या करेगी, उनका रिकमेंडेशन देगी अपॉइंटमेंट के लिए, फिर उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, उनके टर्म्स क्या होंगे अपॉइंटमेंट के, वो सब बताएगी. दूसरा, उसके ऑडिटर के इंडिपेंडेंस और परफॉर्मेंस को रिव्यू और मॉनिटर करेगी और साथ ही साथ ऑडिट प्रोसेस का इफेक्टिवनेस भी चेक करती रहेगी. Further resolved that the audit committee shall review quarterly and annual financial statements and submit the same to the board with its recommendations if any. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है what would be the minimum likely turnover और capital of this company. यानी कि हमने पहले तो कह दिया है कि आर लिमिटेड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है ऑडिट कमेटी, लेकिन क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी बताई नहीं है तो हमें वो कंडीशंस फॉलो करनी होगी, तब जाके ही वो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात आई होगी. तो हमें बताना कि उसका लाइकली टर्नओवर कितना होगा. तो इसके अंदर है कि एज पर रूल 6 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 have prescribed that the following class or classes of companies shall constitute audit committee. पहले तो लिस्टेड कंपनी को तो कंपल्सरीली करना है, उसके अलावा ऐसी कंपनियों को भी करना होगा अपॉइंट ऑडिट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट करना होगा ऑडिट कमेटी. ऑल पब्लिक कंपनीज विथ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, एंड हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरिंग्स एंड डिबेंचर्स एक्सीडिंग ₹50 करोड़ और मोर. तो यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए. अभी इंस्टीट्यूट का जो ये रिवाइज मटेरियल इसमें मोर लिखा हुआ है. पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर है मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, और एग्रीगेट लेना है हमको लोन्स, बोरोइंग्स और डिबेंचर्स का, वो है मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़. और इस क्वेश्चन में क्या है, इन द प्रेजेंट केस द लाइकली टर्नओवर पूछा है हमको, तो हम बता देंगे 100 करोड़ और मोर होगा, और कैपिटल जो होगा वो 10 करोड़ और मोर होगा. इसीलिए ये ऑडिट कमेटी वाला जो क्लॉज है उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ है. लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देख लेते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑडिट कमिटी vis-a-vis statutory auditor when the company wishes to engage them to perform certain engagement not restricted under section 144. यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसकी जो वो काम कर सकता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है अंडर सेक्शन 144. तो उसको छोड़ के जो वो अलाउ नहीं है, उसके अलावा जो काम कर सकते हैं तो दोनों, उसके बारे में हमें बताना है. तो जो ऑडिट कमेटी होगी वो एम्पावर है टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ ऑडिटर. वो ऑडिटर के कमेंट मांग सकती है 3 चीज़ों में. सबसे पहला तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन उसका ऑडिटर का, और रिव्यू कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर फाइनल सबमिशन टू द बोर्ड. तो पहले जो होगा, जैसे जो ड्राफ्ट हम जो बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ऑडिटर जो होगा वो ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करेगा, और फिर उनकी रिकमेंडेशन आपस में ऑब्जर्वेशन वो लोग शेयर करेंगे, और फिर फाइनल सबमिशन किया जाएगा टू द बोर्ड. और सेकंड है द डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. यानी कि ये एक मीडिएटर का जैसा काम कर लेता है ऑडिट कमेटी. जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर होंगे,
और उसके बाद होगा ऑडिट कमेटी और ये जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो ये एक लिंक हो गई बिटवीन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो with this question number 22 we have completed the chapter meetings of the board and its power। थोड़ा लेंदी हो गया है ये चैप्टर भी बड़ा है, बट वी हैव accomplished a major chunk of company law। So I hope you all like the lectures। Please like, share, comment your views। I will be waiting for it। Thank you। Okay then, so with this question we have completed the chapter meeting of the board and its powers। I know वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, बट क्या करें, ये चैप्टर भी थोड़ा लेंदी ही है और स्कोरिंग भी है एग्ज़ाम में। और but we should be happy that we have completed a major chunk of company law। Okay, so I hope you all are liking the videos। Please share, subscribe the channel। I will be waiting for your comments। Thank you।